नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में प्रभु यीशु मसीहा का तीसरा मास सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल असेंबली में सफलतापूर्वक ढंग से किया गया आयोजित। राजू कागे ही नहीं, दर्जनों अन्य लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बोले बीएस येदियुरप्पा। कांग्रेस सरकार पैसा कमाने वाली सरकार है, कर्नाटका विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा। हमारा परिवार ईडी जांच का सामना करने के लिए तैयार, मेरे खिलाफ मामला दर्ज होने पर भी कोई भी मेरे बचाव में नहीं आया, बोले डीके शिव कुमार। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील को एमिक्स क्यूरी किया गया नियुक्त। अब समाचार विस्तार से। प्रभु यीशु मसीहा का तीसरा मास जिला अधीक्षक रेवरेंड घन थॉमस डिसूजा के नेतृत्व में बीदर में सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल असेंबली में सफलतापूर्वक और अद्भुत शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। सामूहिक प्रार्थना में मुख्य भूमिका निभाने वाले रेवरेंड विजय कुमार डेविड बेलामगी ने ईश्वर के वचन, भजन और दिव्य संदेश सुनाए। देश, राज्य और जिले के लोगों की खुशहाली, शांति और स्वास्थ्य के लिए विशेष सामूहिक प्रार्थना की गई। जिला पर्यवेक्षक और वरिष्ठ पादरी रेवरेंड घन थॉमस डिसूजा ने इस बारे में बात की और कहा, मेरे स्थानांतरण के बाद यह तीसरी पूजा सेवा है, मुझे यहाँ सभी से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्षता कर रहे बिशप डॉक्टर अनिल जहना सरवंदा के मार्गदर्शन और निर्देशन में इस बैठक को बीदर जिले में एक आदर्श बैठक बनाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई विकास, प्रगति या परिवर्तन होता है तो बैठक में सब कुछ बताया जाएगा और सभी की सहमति के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर ईसाई मिशनरी संस्थाओं जैसे मिशन, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज पर प्रकाश डाला और सभी से गंभीरता से विचार करने तथा संस्थाओं को बचाने और बढ़ाने के लिए हाथ मिलाने को कहा। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಕಳೆದ 3 ಭಾನುವಾರ, ಇದು 3ನೇ ಭಾನುವಾರ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಹಿತಕರವಾದ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾನೆಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇವಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಯೌವನಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ। ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2nd ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊನ್ನೆ 4 ಜೂನ್ಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಸಭೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ। ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಖಜಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ದೇವರು ಬಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹೋದರರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇವಕರ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್। राज्य की कांग्रेस सरकार में अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट विधायकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल के वायरल ऑडियो के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाउसिंग कॉर्पोरेशन में मकान केवल उन्हीं को आवंटित किया जा रहा है जिन्होंने भुगतान किया है। कांग्रेस के एक अन्य विधायक राजू कागे ने कहा है, बीआर पाटिल ने जो कहा वह झूठ नहीं है, यह सच है। उन्होंने यह कहकर अपनी हताशा व्यक्त की कि मेरी
स्थिति मेरे पिता जैसी है। कांग्रेस पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह पर पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने जवाब दिया है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यालय में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा, राजू कागे अकेले नहीं है, इस सरकार में दर्जनों अन्य लोग हैं और मैं उनमें से प्रत्येक के लिए बोलते रहेंगे। बीआर पाटिल ने 4 बार रिश्वतखोरी के निराधार आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सीएम को बुलाया गया तब भी उन्होंने उन्हें वास्तविक स्थिति बताई और सिद्धरामैया पर उन्हें चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर धन लोलूप सरकार होने का आरोप लगाया। अगर कोई सम्मान है तो सीएम सिद्धरामैया को बीआर पाटिल के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए और उन्हें निलंबित करना चाहिए। अगर सीएम में कोई योग्यता है तो उन्हें निलंबित कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे कहे कि उनमें कोई योग्यता नहीं। अशोक ने मांग की है कि सिद्धरामैया को ही निलंबित कर दिया जाना चाहिए। विपक्षी नेता ने तंज कसते हुए कहा, ना तो कोई शक्ति है और ना ही कोई ताकत। रामैया इतने दिनों से सो रहे हैं, अब रामैया मूर्ख बन गए हैं। भाजपा से निष्कासित विधायक बसवंतगौड़ पाटिल यत्नाल ने मौजूदा राजनीतिक पर बात करते हुए कहा कि अगली बार वे ही सीएम होंगे। कांग्रेस सरकार की विफलता पर बात करते हुए यत्नाल ने कहा, सीएम और डीसीएम ने लोगों का भरोसा खो दिया है, राज्य में हालत चिंताजनक है। यत्नाल ने नया वादा किया है कि अगली बार वे ही सीएम होंगे और उन्हें भाजपा का समर्थन भी मिल सकता है। विजयपुरा में बोलते हुए विधायक यत्नाल ने कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव होना चाहिए। यत्नाल ने विजेंद्र पर एक शब्द का हमला किया, वह एक अयोग्य व्यक्ति हैं। यत्नाल ने चिल्लाते हुए कहा कि सबसे पहले विजेंद्र को अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, हमारा परिवार ईडी की जांच का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। जब मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। आज सदाशिव नगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ईडी ने भी मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया, फिर क्या हुआ? कोई भी मेरी मदद के लिए आया नहीं, अदालत मेरी मदद के लिए आई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर दायर मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील को न्याय मित्र अदालत का सहायक नियुक्त किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की पीठ ने भगदड़ के संबंध में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दायर एक स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने रजिस्ट्रार को वकील सुशीला को मामले में दायर आवेदन, उससे संबंधित सभी दस्तावेज और सरकार द्वारा अब तक प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने की भी निर्देश दिए और सुनवाई अगले मंगलवार के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान उपस्थित वकीलों ने अंतरिम आवेदन दायर कर अनुरोध किया है कि घटना के संबंध में कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी आवेदन के साथ सुनवाई की जाए। एक अन्य अंतरिम याचिका ने वकील भी अनुरोध किया कि सरकार को मृतकों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक शक्ति योजना को लेकर हम अक्सर लोगों का गुस्सा देखते आए हैं। अब गदग में छात्रों ने सरकार की मुफ्त बस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गदग जिले के शिरहट्टी कस्बे में छात्रों ने एक परिवहन कंपनी की बस को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि शक्ति परियोजना के कारण उन्हें बस में चढ़ने में परेशानी हो रही है।
शिरहटी तालुके के हदहली गांव के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बस में जगह नहीं है और उन्हें बस के दरवाजों पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि शक्ति योजना के कारण उन्हें स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी शिकायत है कि उन्हें सीट नहीं मिल रही है, बसें महिलाओं से भरी रहती हैं। मशहूर कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर डोडारंगा गौड़ा की तबीयत खराब है। 89 वर्षीय डोडारंगा गौड़ा घुटने के गंभीर दर्द से पीड़ित थे, लेकिन अब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें बेंगलुरु के केंगेरी स्थित बीजीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज जारी है। डॉक्टर डोडारंगा गौड़ा का जन्म 7 फरवरी 1946 को तुमकुर जिले के मधुगिरी तालुके के कुरबहल्ली में हुआ था। उनके पिता के रंगगौड़ा और उनकी मां अक्कम्मा थी। उन्हें बचपन में ही शिक्षा प्राप्त की और बेंगलुरु विश्वविद्यालय में स्नातक और मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री की प्राप्त। उन्होंने कन्नड़ पुनर्जागरण कविता एक पुनर्मूल्यांकन नामक अपने शोध थीसिस के लिए बेंगलुरु विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। डॉक्टर डोडारंगा गौड़ा कन्नड़ साहित्य और सिनेमा में एक बड़ा नाम है। प्रोफेसर डोडारंगा गौड़ा कवि और लेखक के रूप में भी लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं और फिल्म प्रेमियों का मनोरंजन किया। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं में 80 से अधिक रचनाएं लिखी। राज्य में विकास शून्य है। पूर्व सीएम और सांसद बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के तबादले भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस मुद्दे पर शहर में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अधिकारियों के स्थानांतरण में भ्रष्टाचार हुआ है। ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिर गया है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भले ही बोल रहे हों, लेकिन सीएम और डीसीएम चुप नहीं बैठे। कैबिनेट के साथ ही खुलेआम चिट्ठी लिखते हैं। कैबिनेट में भी सामंजस्य या विश्वास नहीं है। बारिश भी हो जाए, राहत नहीं मिलती। जिन्होंने दुख जताया, लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कोई काम नहीं किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में प्रभु यीशु मसीहा का तीसरा मास सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल असेंबली में सफलतापूर्वक ढंग से किया गया आयोजित। राजू कागे ही नहीं, दर्जनों अन्य लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बोले बीएस येडियुरप्पा। कांग्रेस सरकार पैसा कमाने वाली सरकार है, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा। हमारा परिवार ईडी जांच का सामना करने के लिए तैयार, मेरे खिलाफ मामला दर्ज होने पर भी कोई भी मेरे बचाव में नहीं आया, बोले डीके शिव कुमार। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील को एमिक्स क्यूरी किया गया नियुक्त। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।